Good afternoon, students. Today we will going to start with our another topic for SP lecture. And before going so, I guess you have cleared all the doubts regarding our last lecture, that is fixed capital, capital requirement and etc. जहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल रिक्वायरमेंट देखा था, मीनिंग इम्पोर्टेंसेस देखे थे थोड़े बहुत. Capital requirement is of two type, that is fixed capital and working capital. On the other hand, we have saw the fixed capital, what it is exactly, with proper figures and images. Then we have saw the things that is called factors affecting fixed capital requirement. So students, today our topic is going to be start with this. It is beautifully graphed. Nature of business, size of business, scope of business, extent of lease or rent, arrangement of subcontract, acquisition of old assets, acquisition of assets on concessional rate, international conditions, trend in economy, population trend, consumer preference and competitive factors. So these all are the main possibility factors which affects the fixed capital requirement. So एक रिक्वेस्ट है बच्चों एंड स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इट्स अ रिक्वेस्ट टू सी ऑल माय वीडियोस इन द प्लेलिस्ट ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ताकि आपको कोई भी कहीं से भी डाउट ना हो. नेक्स्ट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट दे आर टॉकिंग अबाउट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस. ओके, so the nature of business means what? Manufacturing industries and public utilities have to invest huge amount of funds to acquire fixed assets. So what does it says? Nature of business का मतलब है कि कौन सा type of nature है. Okay, nature क्या है business का? So it is totally depend whether it is a manufacturing industries or whether it is for the public utility. So in this particular thing, we need to invest a huge amount of funds to acquire what? Fixed assets, ताकि हम लोग fixed assets के ऊपर क्या करें, अपना investment दे सके अच्छी तरह से. So while trading business may not need huge investments in fixed assets, लेकिन जब भी हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस करते, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या है, जहाँ पे लेन देन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग को गुड्स और सर्विसेज हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है. देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी प्रोडक्शन. सो जब भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कुछ, तब हम लोग को क्या करना पड़ता है, फिक्स्ड असेट्स पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. लेकिन अगर मेरा बिजनेस ट्रेडिंग पर्पस हुआ, सो देयर विल नो नीड ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन द केस ऑफ फिक्स्ड असेट्स. आगे बढ़ते हैं. Next one is called size of business. What do you mean by size of business? Size of business का मतलब है आपका बिजनेस छोटा है, बड़ा है, मीडियम साइज़ है, इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में है, तालुका लेवल में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, लोकल एरिया में है. सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड साइज़ ऑफ बिजनेस. अभी और थोड़ी सी डीप में जाते हम लोग. वेयर अ बिजनेस फर्म इज़ सेटअप टू कैरी ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशंस, इट्स फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट आर लाइकली टू बी हाई. जहाँ पे आपका बिजनेस सेटअप किया गया है बहुत ही लार्ज स्केल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी ले लो आप. रिलायंस कंपनी बेस्ट एग्जांपल है, धीरू भाई अंबानी का कंपनी, जहाँ पे जो उनका जो बिज़नेस है वो बहुत ही लार्ज स्केल ऑपरेशंस है, एंड उस पे उनका कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा. So this is depend on the size of the business which you are involved in it. So depend on the firm's business size, the investment for the
fixed capital requirement will also be high. On the other hand, on the contrary, अगर आपका बिज़नेस कम है, मतलब छोटे में है, छोटे एरिया में है या लोकल एरियाज़ में है, सो आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़ीरो हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है, और नहीं तो कम हो सकता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये बताया दैट इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक machines and equipment. So it is totally based on the automatic machines and equipments. मतलब ये सारी जितने भी productions के process होते हैं, those are automatic machines and equipments, and for that reason there should be a fixed capital requirement particularly. I hope so आपको ये 2 points आपको समझ में आया रहेगा. एंड इफ़ आपको समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ भूलिएगा मत कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज स्कोप ऑफ बिजनेस. स्कोप ऑफ बिजनेस मीन्स व्हाट, देखते हैं क्या है इसका मतलब. देयर आर बिजनेस फर्म्स विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल. बहुत ही बड़े स्केल में जब ये बिज़नेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने बिज़नेस को प्रोडक्शन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा, तो उसको क्या बोला जाता है, स्कोप ऑफ बिज़नेस बोला जाता है. जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स द फिक्स्ड असेट्स रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है. सच बिजनेसेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. और यही सारे बिजनेसेस के लिए क्या चाहिए रहता है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल चाहिए रहता है. नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट. इसका मतलब क्या है, एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट, इसका मतलब है जैसे कि कोई भी जगह अगर हम लोग सामने वाले को देते हैं भाड़े में, सो हम लोग को इनकम के तौर से क्या मिलता है, रेंट मिलता है. करेक्ट. सो उसी को और एक नाम से बोला जाता है, दैट इज़ लीज. सो अभी देख लेते क्या है एग्जैक्टली. इफ़ एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स टू एक्वायर assets on lease or on rental basis, less amount of funds for the fixed assets will be needed for the business. अगर कोई भी एंटरप्रेनर, अगर कोई भी बिजनेसमैन जो स्टार्टअप करता है बिज़नेस, उसको बोला जाता है एंटरप्रेनर, ने अगर डिसाइड किया कि एक्वायर करे वो असेट्स, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लीज और रेंटल, मतलब वो खुद बिजनेस रेंट बेसिस में करवाना चाहता है या करना चाहता है. Particularly, he no need to purchase any of the land or particular building, so he just want to be there with the help of rental basis. So the fixed assets में जो funds amounts जो use होंगे ना, that is going to be less as compared to other business. लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप बोलते हो कि मैं पहले परचेस करूँगा land and then I'm going to start my company on that land, so that will be a very huge investment for the fixed capital requirement. यहाँ पे लीज़ का और एक चीज़ भी बताया है, लीज़ का मतलब यहाँ पे बताया है, that is a lease means a contract by which one person grants possession of the some of his property, especially land, building or machinery, to another फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप एक इंसान को दे रहे हो जगह अपना काम करने के लिए, तो दोज थिंग आर कॉल्ड एज वॉट, इन रिटर्न यू विल गोइंग टू टेक समथिंग, सो दैट इज़ कॉल्ड रेंट. लेकिन आप जब भी किसी और को दे रहे हो भाड़े में, सो दोज आर कॉल्ड एज वॉट, लीज. उसको क्या बोला जाता है, लीज बोला जाता है. आई होप दिस ऑल 4 पॉइंट्स यू गॉट टू नो. आगे बढ़ते हैं. मोर 3 पॉइंट्स, दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट. सो अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इफ़ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम processes of production to others, limited assets are required to carry out the production. So अगर कोई भी बिज़नेस चाहता है कि सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए,
तो जो कुछ भी प्रोसेसेस उसके अंदर या रिलेटेड है और होता है प्रोडक्शन के साथ, एंड लिमिटेड असेट्स भी यूज़ करते हैं तभी उसके टाइम पे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्ट। अरेंजमेंट ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, अगर बिज़नेस चाहता है कि सब कॉन्ट्रैक्ट पे वो क्या करे, फोकस करे, जहाँ पे प्रोसेस होगा प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अदर मतलब दूसरे के लिए, लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन, तो वहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन नीड है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है टूवर्ड्स दी फिक्स्ड असेट्स रिक्वायरमेंट, दैट विल बी लेस. So this would minimize fixed capital requirement of the business. So इससे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यानी कि मिनिमाइज का मतलब क्या है, कम हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स. सो एक्विजिशन का मतलब क्या है, टू एक्वायर द ओल्ड एसेट्स. So if old equipments and plants are available at the low prices, then it would be reduced the need for investment in the fixed assets. So यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ओल्ड इक्विपमेंट्स या प्लांट्स को अवेलेबल करेंगे लो प्राइस में, तो फिर क्या होगा, देन इट वुड बी रिड्यूस द नीड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड असेट्स. तो फिर वो फिक्स्ड असेट्स का जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्वायर कर रहे हैं ओल्ड एसेट्स को. सो न्यू एसेट्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, करेक्ट. सो दैट इज़ वाई इफ़ वी गोइंग टू फोकस ऑन दी ओल्ड एसेट्स और हम लोग कंफर्टेबली वो मैनेज करते हैं, सो देयर विल बी लेस इन्वेस्टमेंट इन द टर्म्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स. आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा. The next one is consumer preferences. So industries providing goods and services which are in good demand will require large amount of fixed capital. So यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडस्ट्रीज़ जो गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो जाता है, और डिमांड जैसे जैसे ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बहुत ही ज़्यादा होता है. एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स. ओके, सो बोथ आर व्हाट द एग्ज़ाम्पल फॉर द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. ओके, so with this we have done this point also. Next one is acquisition of the assets on the concessional rate. So what does it says? It's saying about, with the view to foster industrial growth at regional level, the government may provide land and building मटेरियल एट कंसेशनल रेट. सो जो भी आपने एक्विजिशन किया है एसेट्स को कंसेशनल रेट में, कंसेशनल रेट्स का मतलब क्या है, कम से कम. सो दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्प इन आर बिजनेस, बिकॉज इट इज़ वन काइंड ऑफ अ व्यू टू फॉस्टर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए रीजनल लेवल में अगर हम लोग ग्रोथ करवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगा, हम लोग को प्रोवाइड करते हैं लैंड, बिल्डिंग, मटेरियल्स एकदम कंसेशनल रेट में, मतलब कम से कम रेट में हम लोग को ऑफ़र देते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं रीजनल लेवल्स में. So they are giving us, or you can say they are helping us in reducing the amount or the cost of the materials which we are going to use it in developing the industrial growth at regional levels. So government इसमें help करता है कि कंसेशन करता है, क्योंकि हम लोग रीजनल लेवल्स में जाकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेटअप करते हैं. सो दैट विल इंक्रीज़ द growth, or you can say the opportunity of the एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, वहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस और अच्छी तरह से सिखाया जाएगा. सो इस तरह से हम लोग डेवलप ही तो कर रहे हैं व्हेन वी आर पुटिंग आर इंडस्ट्री ओवर इन द रीजनल लेवल. सो इन दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया द गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग अस एंड हेल्पिंग अस बाय प्रोवाइडिंग लैंड एंड बिल्डिंग materials and at a
कंसेशनल रेट, मतलब जो मार्केट वैल्यू में से है उससे भी थोड़ा सा कंसेशन करके हम लोग को हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल कंडीशंस। सो इंटरनेशनल कंडीशंस का मतलब क्या है? दिस फैक्टर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन carrying business on the international level. For example, companies expecting war may decide to invest large funds to expand fixed assets to before there is shortage of the materials. So what does it says? It's saying about international conditions. International conditions वो बोला जाएगा जहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में. So of course if my business is going to be deal with the foreign companies, my investment will be high in the case of the fixed assets requirement. So यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया, दैट इज़ कंपनी एक्सपेक्टिंग वॉर मे डिसाइड टू इन्वेस्ट लार्ज फंड्स. अगर कोई भी कंपनी वॉर में मतलब एक्सपेक्टेशंस करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, उसका फंड्स जो है बहुत ही ज़्यादा चाहिए रहता है. एंड बिफोर देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, और इससे क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स होता है. नेक्स्ट वन इज़ ट्रेंड इन इकोनॉमी. It means if the future of the company is anticipated to be bright. अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कंपनी जो है वो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा, यानी कि ब्राइट का मतलब है सक्सेसफुल होगा. It gives green signal to business entrepreneur to carry out all sorts of expansion of business firm. So ये क्लियरली एक एंटरप्रेनर के लिए ग्रीन सिग्नल होगा कि फ्यूचर में मेरा कंपनी ब्राइट होने वाला है, यानी कि सक्सेसफुल होने वाला है. तो मैं इससे क्या करूँगा कि मैं सारी चीज़ें, ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स आई एम गोइंग टू टेक इट आउट. जो भी एक्सपेंशन के लिए मेरे फर्म के ज़रूरत के लिए चाहिए, आई विल डू दैट. So in that case large amount of funds are invested in fixed assets so as to reap the benefits in future. So इसीलिए बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो बेनिफिट्स मिल सके फ्रॉम द फ्यूचर में. द नेक्स्ट पॉइंट, द सेकेंड लेस्ट पॉइंट इज़ पॉपुलेशन ट्रेंड. So what does it says? It says about when the population is increasing at a high rate, certain manufacturers find this as an opportunity to expand business. For example, automobile industry, electronic goods manufacturing industry, ready-made garments, etc., which necessitated huge amount of fixed capital. So यहाँ पे बोला है कि पॉपुलेशन ट्रेंड के ऊपर हम लोग का बिजनेस चलता है ऑब्वियसली. सो व्हेन द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता जाएगा हाई रेट में, तो उनकी डिमांड्स, उनकी अपॉर्चुनिटीज़, उनकी डिसलाइक, लाइक्स, फैशंस, ये सारी चीज़ें भी क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे. एंड वो बढ़ते वांट्स के लिए हम लोग का बिज़नेस भी एक्सपांशन होगा. और जब ये एक्सपांशन होगा तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रिक्वायरमेंट के लिए बिज़नेस में. सो दैट इज़ वाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा. द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ कॉम्पिटिटिव फैक्टर. सो कॉम्पिटिटिव फैक्टर का मतलब क्या है? एक कॉम्पिटिशन होता है अमॉन्ग इन द मार्केट. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस फैक्टर इज़ प्राइम एलिमेंट, सबसे बड़ा फैक्टर दैट इज़ कॉम्पिटिटिव फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग, ताकि आप डिसीजन मेक कर सको, यानी कि डिसीजन ले सको रिगार्डिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. सो इफ़ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स शिफ्ट टू ऑटोमेशन, द अदर कंपनीज इन द सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी विल बी कंपील्ड टू फॉलो दैट कॉम्पिटिटर. सो वही इंसान, वही पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर क्या करेगा? वो शिफ्ट अगर करेगा ऑटोमेशन में तो दूसरे कंपनीज़ भी सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या करेंगे? एडप्ट करेंगे. सो कॉम्पिटिटिव फैक्टर क्या हो जाता है कि अगर सामने वाले ने और भी अगर कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें की है तो हम लोग भी तैयार होते कि और भी उससे कहीं ज़्यादा गुना अच्छा करने के लिए.
सो एक ऐसा कॉम्पिटिटिव फैक्टर हो जाता है जहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम लोग का रिसर्च डेवलपमेंट होता है एंड साथ ही साथ में जो भी एलिमेंट हम लोग को मिलता है वो हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से मिले मार्केट में एज़ कम्पेयर टू आर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। सो यही चाहते कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ही आए। सो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा बताना पड़ता है। सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा, वी हैव सॉ नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, consumer preferences, acquisition of assets on concessional rate, international conditions, trend in economy, population trend and competitive factors. I hope so आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई and you can repeat my video again for more understanding and better understanding. On the other hand, don't forget to click on the like button and to click on the bell icon to subscribe my channel Saboni Dhara, wherein I will be going to disclose many of the tricks and tips in front of you all. So stay tuned with me. God bless you all. Thank you.